Hello, yes, Apur. Hello, sir. I am Purva. Yeah, hi Purva, how are you, beta? I am fine, sir. Thank you for asking. And what about you, sir? I'm good, beta. I'm good. I'm also fine. Thank you for asking. And where are you right now, Purva? Are you in Jodhpur or you have gone to Ghatsana? Sir, I am in Jodhpur. So you are in Jodhpur. Okay, fine. So, what is your experience of these 7 days, 17 days? Do you really feel that your brother and you will be able to speak English? Do you feel that? Yes, sir. I really feel that I and my brother will definitely speak English one day. Very good, very good. Even your brother has started speaking English, right? He has started. Has he improved his English? Yes, Okay, sir. He has improved his English. very good. Do you feel any difficulty while online classes in your learning? While learning, do you No, feel any problem? no, sir. I don't feel any problem instead of network issue Yeah, that is of another. mine only. Yes, yes, yes. That is another part. If you are living in an area where there is no proper network connectivity, then you might face some issues, right? Rather than that, there is no issue with this. Okay, your study will be as usual as we are having your classes in the same way will continue. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश कैसे कर रहा है? How is my brother trying to play the guitar? वेरी गुड, शाबाश बेटा, आपका लेवल तो बहुत इंप्रूव हो गया। Yes, sir. क्या खाया आपने? सर सब आप ही की वजह से है। नहीं बेटा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मेहनत आपने की है, अप्रिशिएट आपको करता हूँ आपकी मेहनत के लिए, राइट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम की बच्ची होकर के इतना जल्दी आपने कवर किया है, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत अच्छी बात है। हेलो निकिता, प्लीज रेज योर हैंड बेटा। हेलो। Good evening, sir. यस, वेरी गुड इवनिंग निकिता, हाउ आर यू बेटा? I am fine, sir. Thank you for asking. What about you? I'm also fine, same here. Okay, so is there any network issue today that you are facing? No, sir. Okay, so we are going to start our discussion with a short conversation with you only, then we'll come to Mona Vyas as well. Okay, and let other students join, then we'll start today's session. And before that, till other students are joining, we are going to have a short discussion. Okay, so Nikita, you know that today school has started, so did you come to your school today? No, sir. I did not come to school. Okay, fine. Okay, I did not come to. Tomorrow I will go to school. Sorry. Tomorrow I will go to school. टुमारो आई गो टू स्कूल, वेरी गुड। आप कल स्कूल जाओगे, राइट? ओके, ठीक Yes, है। sir. अगर आपको कहना हो कि मैं कल स्कूल आऊंगी, तो क्या कहोगे आप? Tomorrow I will come to school. टुमारो आई विल कम टू स्कूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन दिस 18th सेशन of English, spoken English's 18th session. With this we are going to start our practice. Okay, so कल तक हमने हमारे सभी जो पार्ट ऑफ अलग अलग जो सेंटेंसेस थे सबका हमने कल रिवीजन किया था, and we are going to continue with the same practice. Apur will give you access afterwards. Mona, Payal, please raise your hand. We'll give you access afterwards. So are you ready, Nikita? Yes, sir. I am ready. Okay, fine, just a minute. So your very first word is that I'm giving you right now is run. RUN. आपका पहला जो वर्ड है for today's session that I'm giving you, that is वो है run. ओके, ठीक है। आपको कहना है मैं भागता हूँ, मैं भागती हूँ। निकिता बताओ क्या कहोगे? I run. ठीक है। मैं रोज भागती हूँ, अब बताओ। I run daily. वेरी गुड। मेरा भाई भागता है।
My brother runs. ठीक है, मेरी बहन भागती है। My sister runs. कोई नहीं भागता। Nobody runs. Nobody runs, कोई नहीं भागता, nobody runs। ठीक है, आपको कहना है आप क्या करते हो। What do you do? What do you do, आप क्या करते हो, what do you do। अब मुझे कहना है मैं पढ़ाता हूँ, बताओ क्या कहोगे। I teach. ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब बताओ। I teach English. आई टीच इंग्लिश, वेरी गुड। ठीक है, और अब मुझे कहना है मैं भाग रहा हूँ। I am running. क्या तुम भाग रहे हो। Are you running? ठीक है, आप क्यों भाग रहे हो। Why are you running? ठीक है, शाबाश। ठीक है, क्यों भाग रहे हो, क्यों हो, ये हो गया है ना। फिर आपको कहना है मैं नहीं भाग रहा। I am not running. ठीक है, मैं भाग चुका हूँ। I have run. अब ये रन नहीं होगा, ये होगा आई हैव रन। इसको हम बोलते हैं रन, रैन और रन। रन, रैन और रन। ओके, Okay. रन, रैन, रन। भागो, भागा, भाग चुका या भाग लिया। राइट, तो मैं भाग चुका हूँ, आई हैव रन। मेरा भाई भाग चुका है। My brother has run. ठीक है, मेरे पापा भाग चुके हैं। My father has run. ठीक है, कोई नहीं भागा है। Nobody has run. ठीक है, अब एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और इसकी फॉर्म्स होती है ट्राई, ट्राइड और अगेन ट्राइड। ओके, ट्राई, ट्राइड, Okay. ट्राइड। ठीक है, अब जब भी आप ट्राई का यूज करेंगे तो ट्राई के साथ ना किसी काम को करने की कोशिश करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ। समझना मेरी बात। What I have said, I said, मैं इंग्लिश बोलने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। Question. अब आपको कहना है मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, बताओ क्या कहोगे। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लाइव लिखेंगे आप। I don't try to speak English. आई डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। टू स्पीक यहाँ जो आ रहा है ना, इंग्लिश बोलने की कोशिश करने के लिए वर्बल नाउन है। ये वर्बल नाउन है टू स्पीक, है ना। मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताओ क्या कहोगे। कोशिश I करता हूँ। tried to eat food. आई ट्राई टू ईट फूड, वेरी गुड। मैं गाना गाने की कोशिश करता हूँ। I try to sing a song. वेरी गुड, मैं नाचने की कोशिश करता हूँ। I tried to dance. ठीक है, मेरा भाई लिखने की कोशिश करता है। My brother tries to write. ट्राइज टू राइट, लेकिन वो लिख नहीं पाता। But he does not write. नहीं, डज नॉट राइट का मतलब होगा लेकिन वो लिखता नहीं है। अब कोशिश कर रहा है तो लिखता तो है। लिखने में और लिख नहीं पाने में फर्क है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट ही कैन नॉट राइट, लेकिन वो लिख नहीं सकता। वो लिख नहीं सकता, बट ही कैन नॉट राइट। ठीक है, कैन Okay. और हमने किया था ना, कैन और कैन का यूज बताया था मैंने, कैन और कैन नॉट। Yes, sir. Yes, उसे sir. भूलना नहीं है, उसको माइंड में साथ में लेके चलना है। ठीक है, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। Do you speak English? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। Can you speak English? वेरी गुड, कैन यू स्पीक इंग्लिश, शाबाश। क्या आप खाना पका सकते हो। Can you cook food? कैन यू कुक फूड, वेरी गुड, है ना। नहीं, मैं तो नहीं पका सकता, No, I cannot cook food. लेकिन मेरा भाई पका सकता है। But my brother can cook food. वेरी गुड, मेरी मम्मी को भी नहीं पकाना आता। My mother cannot cook food. कैन नॉट कुक फूड का मतलब हो गया मेरी मम्मी नहीं पका सकती। मैंने कहा मम्मी को नहीं आता। माई मदर डोंट नो। अब डोंट नो या डजंट नो। Doesn't know. माई मदर डजंट नो हाउ टू कुक फूड।
Very good. My mother doesn't know how to cook. Very good, Apurv. You have written. Very good. बहुत बढ़िया. ठीक है. तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. नेक्स्ट एक और वर्ड दे रहा हूं मैं आपको. ट्राई वर्ड दे दिया. अब आपको कहना है कि मैं कार चलाने की कोशिश करता हूं. I tried to drive a car. अब बाकी स्टूडेंट स्क्रीन पे ध्यान देंगे, स्पेशली मोना और अलका. मोना और अलका विशेष रूप से ध्यान देंगे अपनी स्क्रीन पर. मैंने लिखा आई ट्राई टू ड्राइव माई कार. मैं मेरी कार चलाने की कोशिश करता हूं. अब आपको कहना है मैं कार चलाने की कोशिश नहीं करता. I don't drive my car. I don't drive my car. I don't try to drive my car. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. ठीक है. क्या मैं मेरी कार चलाने की कोशिश करता हूँ? Do I try to drive my car? Do I try to drive my car? वेरी गुड. मैं कार चलाने की कोशिश क्यों करता हूँ? Why do I try to drive my car? Why do I try to drive my car? ठीक है. एक और सेंटेंस लेंगे. मेरा भाई कार चलाने की कोशिश नहीं, कार चलाने का बहुत हो गया. ठीक है. अब हम दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं. एक और वर्ब दे रहा हूं. मेरा भाई खेलने की कोशिश करता है. नहीं, खेलने की नहीं, रुक जाओ. My brother tried. एक मिनट, 1 मिनट. गिटार देखा आपने? Yes, sir. अब ये गिटार को जो बजाते हैं उसको बजाने के लिए भी प्ले वर्ड का यूज किया जाता है. ठीक है. तो अब आपको कहना है मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश करता है. बताओ क्या कहोगे? My brother tried to play guitar. My brother tries to play guitar. tries to play the guitar. जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पहले द लगा दें आप. ठीक है. My brother tries to play the guitar. ओके. यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको कहना है मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश नहीं करता है. बताओ क्या कहोगे? My brother does not try to play the guitar. My brother doesn't try to play the guitar. ओके. सही है ना? ठीक है. क्या मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश करता है? Does my brother try to play the guitar? Does my brother try to play the guitar? Right? सही है? Yes. मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश कब करता है? When does my brother try to play the guitar? When does. अब देखो हमने किया क्या? हमने सिर्फ ये किया कि does my brother try to play guitar? क्या मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश करता है? इसके पहले हमने सिर्फ when लगा दिया. इतना सा काम किया और आपका सेंटेंस बन गया. देखो कितना आराम से आपका सेंटेंस बन जाता है, बहुत इजीली. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ तक? No, sir. अगर आ रही है तो प्लीज बता दें मुझे. रिपीटेशन अगर कुछ रिक्वायर्ड है, आई एम रेडी फॉर दैट एज वेल. ओके. नहीं, आगे बढ़े. ठीक है. Yes, sir. Now this is a sentence for everyone, for all of you, and the very next sentence is मेरा भाई गिटार बजा रहा है. My brother is playing the guitar. वेरी गुड. मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश कर रहा है. My brother is trying to playing the guitar. My brother is trying to play the guitar. ठीक है. मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश नहीं कर रहा. बताओ क्या होगा? My brother is not trying to play the guitar. Right? My brother is not trying to play the guitar. ठीक है. ये हो गया. फिर आपको कहना है क्या मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश कर रहा है? Is my brother trying to play the guitar? Is my brother trying to play the guitar? ठीक है. क्वेश्चन मार्क. क्या मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश कर रहा है? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मेरा भाई गिटार बजाने की कोशिश कैसे कर रहा है? How is my brother trying to play the guitar?
वेरी गुड, शाबाश बेटा, आपका लेवल तो बहुत इंप्रूव हो गया। यस सर। क्या खाया आपने? सर सब आप ही की वजह से है। नहीं बेटा, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेहनत आपने की है, अप्रिशिएट आपको करता हूँ आपकी मेहनत के लिए, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हिंदी मीडियम की बच्ची होकर के इतना जल्दी आपने कवर किया है, दैट इज रियली अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस में एक दो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में करूंगा। निकिता, मैं चाहूंगा आप ना केयरफुली सब सारी चीजों को सुनेंगे, ठीक है? Okay. ओके सर। I have next students with me. I would like to talk to Apurv Singh this time. Then we'll come to Payal, then Alka, Kuldeep, then Harshita, and then Mona. Mona, please be ready. मैं आपको बीच में भी ले लूंगा, कहीं ना कहीं बुलवा दूंगा। एंड कुलदीप, हर्षिता एंड मोना, प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट आई कैन गिव यू माइक एक्सेस व्हेनेवर आई वांट। ओके, ठीक है। विद दिस, हाय अपूर्व, हाउ आर यू बेटा? I am fine, sir. And what about you? सेम ईयर माय डियर, सेम ईयर। अब तक हमने पढ़ा था, हमने सीखा आई एम फाइन का रिप्लाई हम देते हैं आई एम फाइन, है ना? अब आज नया सीख रहे हैं सेम ईयर। सेम ईयर का मतलब होता है मैं भी वैसा ही हूँ जैसे आप हो, सेम ईयर, ठीक है? अब Okay, sir. कई बार हम ये भी बोलते हैं ना, मैं वैसा ही हूँ जैसा तुमने कल छोड़ा था मुझे, मैं वैसा ही हूँ जैसा मुझे कल तुमने छोड़ा था, राइट, है ना? Yes. तो उसके लिए आप कहेंगे सेम सेम एज यू लेफ्ट मी yesterday, राइट, सेम एज यू लेफ्ट मी yesterday, ठीक है? आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही शायद से? Call. Yes, sir. ओके, अभी दिखाई दे रही है, देखिए। Yes, sir. ओके, फाइन। सो ओके, सो आई एम गिविंग यू अनदर सेंटेंस माय डियर, ओके? ठीक है, आपका सेंटेंस है मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूं। बताओ क्या कहोगे? मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूं, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, क्या कहोगे? I meet my friends. आई मीट माई फ्रेंड्स, आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ। मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिलता। I don't meet my friends. क्या तुम तुम्हारे दोस्तों से मिलते हो? क्या तुम, डू यू, क्या तुम जहां पर आएगा डू Do यू, Do you meet your friends? डू यू मीट योर फ्रेंड्स, ठीक है? आप अपने दोस्तों से क्यों मिलते हो? Why do you meet your friends? वाई डू यू मीट योर फ्रेंड्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तब आपको कहना है मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिलता। I don't meet my friends. मेरे दोस्त मुझसे मिलते हैं। My friend meets me. My Very friend meets me. हाँ, माई फ्रेंड मत कहो, मेरे दोस्त, यानी कि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त नहीं है ना, कई सारे फ्रेंड्स रहते My होंगे। तो आप कहिए माई फ्रेंड्स मीट मी, माई फ्रेंड्स मीट मी। तब आपको कहना है मैं मेरे दोस्त से मिल रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त I से, am meeting my friends. सॉरी, I am meeting my friend. आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स और मीटिंग विद माई फ्रेंड्स, Meeting with my friend. आई एम मीटिंग विद माई फ्रेंड्स, ओके। Friends. मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिल रहा हूँ, I am not meeting with my friends. ओके। मैं मेरे दोस्तों से मिल चुका हूँ, मिल चुका हूँ। सर शॉर्ट फॉर्म क्या आती है? मीट, मेट, मेट, I have met with friends. very good, I have met with my friends, right, okay, very good। अब आपको कहना है क्या मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ? क्या मैं Do I सॉरी, do I नहीं, meet with do I my नहीं, friend? do I नहीं होगा। देखो, हम कह रहे हैं अगर मैं ये कहूँ ना क्या मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ,
तो डू आई हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, मिलता हूँ बोला था या मिल रहा हूँ? मिल रहा हूँ। हाँ, तो मिल रहा हूँ के लिए क्या आएगा? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये एम, ये पहले एम एम एम, आई एम आई, फिर मीटिंग विद माई फ्रेंड्स। एम आई मीटिंग विद माई फ्रेंड्स, फ्रेंड क्या मैं मेरे दोस्तों से मिल रहा हूँ? राइट, मैं मेरे दोस्तों से क्यों मिल रहा हूँ? अब बताओ। वाई एम आई मीटिंग विद माई फ्रेंड्स। एम आई मीटिंग विद माई फ्रेंड्स, करेक्ट। ठीक है, अब आपको कहना है मैं मेरे दोस्तों से मिल चुका हूँ। आपने क्या कहा था? आई, बोलो शाबाश। आई हैव मेट विद माई फ्रेंड्स। ठीक है, हम हमारे दोस्तों से मिल चुके हैं। अब बताओ क्या कहोगे? वी हैव यस, मेट विद माई फ्रेंड्स। हम हमारे दोस्तों से, अवर फ्रेंड्स। यस, वी हैव मेट विद आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स। ठीक है, आर नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका? हम नेगेटिव। हमारे, हाँ, हम हमारे दोस्तों से नहीं मिले हैं। वी हैव नॉट मेट विद माई अवर फ्रेंड्स। वी हैव नॉट मेट विद आवर फ्रेंड्स, राइट। क्या हम मिल चुके हैं? क्या हम मिल चुके हैं? वी हैव मेट वी हैव मेट गलत हैव वी मेट। है। हैव वी मेट, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? हैव वी मेट बिफोर, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है ना, अपन किसी को मिलते हैं तो याद नहीं आता, फिर हम बोलते हैं क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या? पहले कभी मिल चुके हैं। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं क्या? हैव वी मेट बिफोर, समझ में आ रहा बिफोर। है? ठीक है, यस very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझना जरूरी है। अब बताओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? व्हाट एम आई डूइंग? यू आर, स्ट्रेच यू स्ट्रेच आर, नहीं, यू आर व्हाट? स्ट्रेचिंग You are stretching. What am I stretching? Your body, right? योर बॉडी। So you will say, you are, sir, you are stretching your body, है ना? यस सर। Very good, बहुत बढ़िया, शाबाश। Now tell me, what am I doing? स्क्रैच Scratch. I'm scratching an itch. I'm scratching an itch, है ना? खारिश करते हैं, स्क्रैचिंग करते हैं itch को। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा आगे दूसरे स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, फिर आज का ना नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे इसी के साथ। टाइम बदल देंगे, टेंस बदल देंगे। कैन वी सर मेट? मेरे में इम्प्रूवमेंट है। किसमें? मुझ में। बेटा बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आपको खुद को क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योरसेल्फ, आप खुद बताओ। सर मुझे तो लग रहा है। ऑब्वियसली है बेटा, क्यों नहीं होगी? आप मेहनत कर रहे हो, यू आर वर्किंग हार्ड विद मी, देन व्हाई इट विल नॉट हैपन? यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश विद इन अ कपल ऑफ डेज ओनली, राइट? ठीक है। यस सो नेक्स्ट मैं चाहूंगा मोना व्यास, आप हैंड रेज कर दें। मोना से बात करूंगा, फिर अलका से बात करेंगे, बाकी स्टूडेंट से बाद में बात करता हूँ। मोना व्यास, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, ठीक है, ठीक है। हेलो मोना। हेलो। Hello, sir. हाँ, Good evening. कैसे हो आप? हाउ आर यू? I am fine. What about you, sir? Same here, Mona, same here. I am also fine. Okay, thank you for asking. So I am starting with the same practice with you, ठीक है। अब Sir. आपको कहना है, हमने लास्ट टाइम जहां पर मैंने आपके साथ पिछली बार प्रैक्टिस छोड़ी थी, हम उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। Okay, sir. आपको Okay, sir. कहना है मैं मेरी दुकान जाती हूँ। I am going daily my shop. नहीं, फिर से, मैं मेरी दुकान जाती हूँ। I am अगर आप दुकान जाते हो, समझना,
अगर आप दुकान जाते हो, अब हुआ क्या है, आप वो भूल गए जो मैंने करवाया था उस दिन, राइट? Sir. तो ये रेगुलरिटी का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा. Recorded classes है Mona, I would like to request you please go through our recorded sessions so that you can have an idea about speaking. Okay, still I will help you, no worry for that, don't worry. Okay, अब देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो आप Yes. आई प्लस एक्शन का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? आई प्लस एक्शन. Action. आई एक्शन क्या कर रहे हो? जाने का एक्शन करते हो. आई गो, कहां पर जाते हो? टू माई शॉप. आई गो टू माई My शॉप. आई गो टू माई शॉप, है ना? फिर हो जाएगा आई डोंट go गो टू माई शॉप. फिर होगा डू आई गो टू माई शॉप, क्या मैं मेरी दुकान जाती हूँ. फिर होगा वाई डू आई गो टू माई शॉप. समझ में आ गया? 4 सेंटेंसेस अलग अलग. Yes, sir. ऐसे ना प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं. आज आप एक काम करेंगे, आपकी एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल के अंदर प्रेजेंट सिंपल के प्रैक्टिस सेट लाइव किए हुए हैं. उन प्रैक्टिस सेट से आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है? अब जैसे मैंने बोला आई गो टू माई शॉप, है ना? अब आपको कहना है मैं मेरी दुकान खोलती हूँ, तो बताओ क्या कहोगे? I आई प्लस एक्शन का यूज करना है. एक्शन क्या हो रहा है? दुकान खोलने का. I open आई ओपन my shop. माई शॉप. वेरी गुड. मैं शॉप ओपन नहीं करती, बताओ क्या कहोगे? I don't open my shop. आई डोंट ओपन माई शॉप. ठीक है? क्या मैं मेरी शॉप ओपन करती हूँ? Do I open my shop? वेरी गुड. ये हो जाएगा आपका डू आई ओपन माई शॉप. क्या मैं मेरी शॉप ओपन करती हूँ? मैं मेरी शॉप ओपन कब करती हूँ? कब के लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा व्हेन. When I open my shop. व्हेन आई नहीं. अब है ना, बड़ा आसान है. मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो बताओ क्या कहोगे? Can you speak English? कैन यू स्पीक इंग्लिश का मतलब हो गया क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो. कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप बोल सकते हो, मतलब मैं आपका पोटेंशियल जानना चाह रहा हूँ. क्या आप बोल सकते हो? मुझे बोल सकते हो नहीं पूछना, मुझे पूछना है क्या आप इंग्लिश बोलते हो. तो मैं कहूंगा डू यू स्पीक इंग्लिश. Do you speak English? डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, है ना? इसी तरह से मुझे कहना है क्या आप दुकान बंद करते हो. Do you close your shop? डू यू क्लोज योर शॉप कह सकते हो. डू यू क्लोज योर शॉप. राइट? यहां तक कोई डाउट नहीं है. No, sir. ठीक है, वेरी गुड. अब ना मैंने कहा, जैसे हमने लिखा डू आई ओपन माई शॉप, क्या मैं मेरी दुकान ओपन करता हूं. अगर मुझे कहना है क्या तुम तुम्हारी दुकान ओपन करते हो, तो डू आई को हटा दो, आई को कर दो यू. क्या आप अपनी दुकान ओपन करते हो. Do you अगर मुझे कहना है क्या हम हमारी दुकान ओपन करते हैं, तो बताओ क्या कहोगे? we वी. वेरी गुड. वी कहाँ, किसकी जगह? पूरा सेंटेंस बोल के बताओ. sir? तो क्या बोलना है मुझे? पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलो. जैसे मैंने कहा ना डू यू ओपन माई शॉप, क्या आप Do मेरी शॉप ओपन करते हो. राइट? इसी तरह आपको कहना है क्या हम हमारी शॉप ओपन करते हैं. do we हाँ, open our shop? वेरी गुड. बड़ा सिंपल है. देखो, डू की जगह डू लिख दिया, यू को कर दो वी, है ना? काम क्या हो रहा है? शॉप ओपन करने का. तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा. डू यू ओपन योर शॉप, डू वी ओपन आवर शॉप. करेक्ट? Yes, sir. अब एक काम करना है सभी स्टूडेंट्स को, सेम इसी तरह से जैसा आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं. इन द सेम वे आई हैव गिवन यू प्रैक्टिस सेट्स. प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसके आधार पे प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है. वर्ब्स मैंने बता रखे हैं, बहुत सारी वर्ब्स भी लिख के आपको दी हुई हैं. उन्हीं वर्ब्स के आधार पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू करो. ठीक है? ओके. Yes. अभी नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम लोग एक स्टेप और. अब आपको कहना है हम इंग्लिश बोलते हैं. हम इंग्लिश बोलते हैं. We speak English. We are speaking English. वी आर नहीं आएगा. मैंने कहा देखिए आई प्लस एक्शन, तो वी प्लस एक्शन हो जाएगा. यहाँ पर Speak इज English. एम आर नहीं आएगा. यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन होता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? वी स्पीक. Speak वी English. स्पीक इंग्लिश. क्या? सॉरी, हम इंग्लिश बोलते हैं. हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं.
We don't speak English. वी डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? Do you speak English? डू यू या डू वी? Do we speak English? डू वी स्पीक इंग्लिश? राइट, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं? कैसे? How do you speak English? हाउ डू यू How do we वी speak English? स्पीक इंग्लिश? अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब ये तो बात हो गई आई वी यू दे अगर होंगे सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट अगर होंगे आई वी यू दे, ये कंप्लीट चीजें मैंने प्रैक्टिस सेट में डिटेल में बताई हुई हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होंगे? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, देन यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाते हैं, करेक्ट? Okay, sir. एस और एस लगाते हैं। सर वो आपने वर्ब की थर्ड पर्सन के लिए जो बताया था ना, वो वाली लाइन म्यूट हो गई थी, मेरे को कुछ भी सुनने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सभी के लिए सुन लीजिए, जब भी प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल टाइम की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, मैं सुनता हूं, है ना, मैं जागता हूं, मैं कहीं पर जाता हूं, मैं कहीं से कुछ लाता हूं, मैं कुछ खरीदता हूं, ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आ रहा है, ऐसे सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल, उनमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है ही स्पीक्स, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, एस और ईएस लग जाएगा तो स्पीक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ही डज नॉट स्पीक्स, डू में ईएस लग जाएगा, ही डज नॉट स्पीक हो जाएगा। डज ही स्पीक, व्हाई डज ही स्पीक, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। अंडरस्टूड? ओके सर। ठीक है। अब ना मोना, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा ही, शी, इट, या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी हो, जैसे मैंने कहा माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय अंकल, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है। अब आपको कहना है मेरी बहन अंग्रेजी बोलती है, बताओ क्या कहोगे? माय सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। माय सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश, वेरी गुड। मेरी बहन अंग्रेजी नहीं बोलती है, बताओ क्या कहोगे? माय सिस्टर डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। डज नॉट स्पीक्स और स्पीक? स्पीक्स। डज नॉट स्पीक, एस और एस एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। ठीक है, डज नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मेरी बहन इंग्लिश बोलती है? डज माय सिस्टर स्पीक इंग्लिश। डज माई सिस्टर स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। मेरी बहन इंग्लिश कब बोलती है? हाउ डज। हाउ का मतलब तो कैसे होता है, मैंने बोला कब बोलती है, कब के लिए आएगा? वैन, WHEN, वैन आएगा कब के लिए? वैन। व्हेन डज माय सिस्टर स्पीक इंग्लिश। व्हेन डज माई सिस्टर स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सो आपने कहा व्हेन डज माय सिस्टर स्पीक इंग्लिश, राइट? जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल, जस्ट अ मिनट। हेलो, या सो स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कि मेरी बहन बोलती है, राइट? तो शी, माय सिस्टर स्पीक्स या शी स्पीक्स, करेक्ट। अब आपको कहना है मेरा दोस्त रोता है, नहीं, मेरा दोस्त सोता है, सोता है वो। माय फ्रेंड हाँ हाँ, स्लीपिंग। नहीं, स्लीप। स्लीप्स। हमने आईएनजी पे हम आए नहीं मोना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? देखो बड़ा इजी, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, माई फ्रेंड स्पीक्स, आई स्पीक, माई फ्रेंड स्पीक्स, क्योंकि माई फ्रेंड है थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट? ओके। आप ना प्रैक्टिस सेट देखना, आज आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, प्रैक्टिस सेट आप देखना, ठीक है? यस। ओके, एक बार मैं बाकी बच्चों के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको भी बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत सारी चीजें देख देख के समझ में आएंगी, फिर मैं लास्ट में आपको लूंगा। ओके ओके। ओके। हेलो अलका, हाउ आर यू? हेलो अलका। Yes, sir. यस, हाउ आर यू? I'm good. What about you, sir? Same here, I am also good, thank you for asking.
Okay, so Alka, I'm giving you another word with the same practice that we did yesterday. सेम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज फिर, क्योंकि हमें ना भागना नहीं है, मेरी बात समझना। आपको लग रहा होगा कि सर एक ही चीज बार बार क्यों करवा रहे हैं। मैं एक ही एक चीज बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये चीज आपकी परफेक्ट हो जाए। हमें परफेक्शन के साथ आगे बढ़ना है, हमें कच्चा पक्का स्पीकर बन के आगे नहीं बढ़ना है, हमें एक बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा स्पीकर बन के फिर आगे बढ़ना है। राइट, ठीक है। सो आज की प्रैक्टिस में नेक्स्ट वर्ड दे रहा हूं आपको अलका, जैसे हमने कल तक बहुत सारे वर्ड किए थे। राइट, आज आपका नेक्स्ट वर्ड है जो है गिव। आपका वर्ड है गिव, है ना। अब गिव का मतलब क्या होता है, देना, है ना। ठीक है, मैं कोई चीज देता हूं, है ना। अब आपको कहना है आई गिव माई पेन, मैं मेरा पेन देती हूं, तो आप कहोगे आई गिव माई पेन। किसको देते हो, टू माई फ्रेंड। आई गिव टू माई फ्रेंड, आई गिव माई पेन किसको देते हो, टू। टू का मतलब किसको, टू, टू माई पेन, टू माई फ्रेंड, सॉरी। अब समझना, दो अलग अलग सेंटेंस बता रहा हूं, एक ही बार में समझना। ओके सर। जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने कहा आई गिव माई पेन, ठीक है जी, आई गिव माई पेन। अब ये पेन आप किसको देते हो वो समझना, किसको देते हो के लिए टू आएगा, ठीक है, टू माई फ्रेंड, कि मैं मेरे फ्रेंड को पेन देती हूँ। अब आपको कहना है मैं मेरे दोस्त को पेन नहीं देती, बताओ क्या कहोगे। आई गिव माई पेन, आई नहीं गिव नोट। नहीं, मैं सोचो। मेरा पेन मेरी फ्रेंड को नहीं देती हूँ। हाँ, नहीं देती हूँ। सोचो सोचो सोचो, आई गिव, अच्छा, हाँ। आई गिव नोट माई पेन। नहीं। एक हिंट दिया है आपको, स्क्रीन पर देखो। हाँ, आई डू नोट माई पेन, आई डू नोट हाँ, माई पेन नहीं गिव। नहीं, उल्टा कर दिया आपने। आई ये डू नोट। समझो, आई डोंट गिव, आई गिव। समझो, मेरी तरफ देखो, मेरी स्क्रीन पे मेरा वीडियो देखो, स्क्रीन से ध्यान हटाओ, मेरी तरफ देखो। आई गिव, मैं देता हूं, आई डोंट गिव, मैं नहीं देता। आई स्पीक, आई डोंट स्पीक। वी स्पीक, वी वी ऑल स्पीक, वी डोंट स्पीक। वी ईट, वी डोंट ईट। गॉट माई पॉइंट। यस सर। ठीक है, फिर आ जाओ, मैंने लिखा आई डोंट गिव, मैं नहीं देता। क्या नहीं देता भाई, माई पेन, मैं मेरा पेन नहीं देता। अब मैंने पूछा अरे अलका पेन किसको नहीं देती हो, तो आपने कहा टू माई फ्रेंड। आपको तो दे देती हूँ सर, लेकिन मैं मेरी फ्रेंड को नहीं देती हूँ, टू माई फ्रेंड। आई डोंट गिव माई पेन टू माई फ्रेंड। अंडरस्टूड। यस सर। ठीक, अब आपको कहना है क्या, नहीं सॉरी, अब आपको कहना है आप अपने फ्रेंड को पेन देते हो, आप अपने फ्रेंड को पेन देते हो, बताओ क्या कहोगे इसके अंदर। आई को कर दो यू, बड़ा आसान है, समझना मेरी बात। आई को कर दो यू, यू गिव माई पेन, मेरा पेन तो नहीं देते आप, तो अपना पेन दोगे, है ना। यू गिव योर पेन, योर पेन का मतलब होता है आपका पेन, पेन आपका है, मेरा नहीं। यू गिव योर पेन टू, किसको देते हो, अपने ही तो दोस्त को दोगे, तो ये हो जाएगा यू गिव योर पेन टू योर टू फ्रेंड। योर फ्रेंड। यू गिव, आप देते हो, है ना। आप नहीं देते हो, बताओ क्या कहोगे। यू डोंट गिव वेरी योर गुड, पेन टू योर फ्रेंड। वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यस सर। अब ये तो हो गया जी गिव वाला, कि मैं देता हूं, आई गिव और आई डोंट गिव। राइट, अब मैं बात करता हूं, हम खाली देंगे ही थोड़ी, कभी लेंगे भी तो सही, लेंगे। हाँ। लेना भी तो है दोस्त से, दोस्त काम के क्या है अगर हम लेंगे ही नहीं कुछ, तो है ना। तो अब आपको कहना है मैं लेता हूं, है ना, मैं लेता हूं के लिए ये हो जाएगा आई टेक। टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करना, मैं ना यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए, जो फॉर्म्स होंगी, गिव की फॉर्म्स हो जाएगी गिव, गेव,
गिवन और टेक की होगी टेक, टुक और Okay. टेकन। ओके, ठीक है। Okay. अब मैंने लिखा आई टेक, मैं मेरे दोस्त का पेन लेता हूं, मैं मेरे दोस्त का पेन लेता हूं। आई टेक, I take uh, I take हाँ pen my friend. नहीं, मेरे दोस्त का, माई फ्रेंड्स, Um, FRIEND my अपोस्ट्रोफी के साथ में एस, माई फ्रेंड्स। इस फ्रेंड्स का मतलब हो गया दोस्त का, इस फ्रेंड्स का मतलब हो गया दोस्त का, माई फ्रेंड्स का मतलब हो गया मेरे दोस्त का। ठीक है, आई टेक माई फ्रेंड्स पेन, मैं मेरे दोस्त का पेन लेता हूं। अब आपको कहना है मैं मेरे दोस्त का पेन नहीं लेता, बताओ क्या कहोगे? I don't आई take डोंट my माई my friend's pen. फ्रेंड्स पेन, मैं मेरे दोस्त का पेन नहीं लेता। Hmm. अब आपको कहना है तुम लेते हो, You यू take यू टेक your friend's pen. योर फ्रेंड्स पेन, है ना? आप नहीं लेते, You don't take your friend's pen. वेरी गुड, यू डोंट टेक योर फ्रेंड्स पेन, आप नहीं लेते। आपकी बहन लेती है, आप बताओ क्या कहोगे? आपकी Uh, बहन लेती है, मेरी बहन लेती है। हाँ आपकी बहन लेती है, आपकी बहन। मतलब आप मुझे कह दो कि भाई मेरी बहन लेती है, आप मुझे कहो कि आपकी बहन लेती है, आपकी बहन, बताओ क्या कहोगे? Your sister वेरी गुड, योर सिस्टर। uh, take एक या your friend. कुछ और होगा, गलत नहीं हो गया क्या? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कुछ कहा था मैंने। Uh, टेक्स, takes योर सिस्टर टेक्स योर पेन, आपकी pen. बहन आपका पेन लेती है, राइट? Hmm. मेरी बहन तो नहीं लेती, मेरी बहन नहीं लेती, बताओ क्या कहोगे? My sister don't डोंट, गलत हो गया। नहीं लेती ना सर। हाँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डोंट कैसे कहोगे? डज नॉट हो जाएगा। हाँ माई सिस्टर my डजंट, sister does not take. हाँ माई सिस्टर डजंट टेक, मेरी बहन नहीं लेती। ठीक है, क्या मेरी बहन लेती है, बताओ? does my sister डज माई सिस्टर, ठीक है, take? टेक योर पेन, हम्म क्या मेरी बहन आपका पेन लेती है? ठीक है, वेरी गुड। मेरी बहन आपका पेन क्यों लेती है? why uh, यस यस why यस, why does my sister take व्हाई your डज माय सिस्टर टेक take योर पेन? your pen? अब हाँ देखो कितना आसान था, समझना मेरी बात। पहले मैंने लिखा डज माई सिस्टर टेक योर पेन, क्या मेरी बहन आपका पेन लेती है? अब हमने डज के पहले सिर्फ वाई लगा दिया, मैंने लगाया वाई, और ये बन गया वाई डज माई सिस्टर टेक योर पेन, कि मेरी बहन आपका पेन क्यों लेती है। यहां तक समझ में आ गया जी आपको? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको ना मुझसे सवाल पूछना है, आपको कहना है सर आप क्या करते हो, बताओ क्या कहोगे? क्या व्हाट करते हो? डू यू, सर व्हाट डू हाँ यू डू, व्हाट डू यू डू का मतलब आप क्या करते हो, है ना? हम्म अब मैंने कहा जी कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आपको पूछना है सर आप क्या पढ़ाते हो, बताओ कैसे कहोगे? सर आप क्या पढ़ाते हो? बोलो। what do you हाँ, शाबाश, व्हाट डू यू, आगे व्हाट डू यू डू जो लिखा है ना, इस डू की जगह कर दो व्हाट डू यू टीच। teach? आप क्या पढ़ाते हो, ये आपकी जुबान पे अटका हुआ था, आप बोल नहीं पाए। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर।
पर आपको सर ऐसा पता है क्यों होता है कि मतलब जब खुद से बनाते तो ऐसा लगता है बन रहा है, कोई पूछता है तो इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? ऐसा इसीलिए तो मैं बुलवा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बुलवा रहा हूँ। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में कोई आपको मेरी तरह सेंटेंसेस नहीं देगा कि अलका ये बोलो, अलका ये बोलो, हाँ। नहीं, वहां खुद से बोलना होगा। और बड़ा सिंपल है, बहुत इजी। आपको पूछना है आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, है ना। मैंने कहा जी आई टीच। सर आप कहाँ पर पढ़ाते हो बताओ। चलो एक सवाल है मन के अंदर, हमारे मन में सब पूछने के लिए बातें जरूर होनी चाहिए तभी पूछ पाओगे। मन में कुछ है ही नहीं पूछने के लिए तो नहीं पूछ पाओगे आप, समझना हाँ। मेरी बात। मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब आपने कहा जी व्हाट डू यू टीच, तो मैंने इसका हाँ। आंसर दे दिया आपको। अब मैं आंसर दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। अब मैं आंसर दे रहा हूँ। आपने कहा व्हाट डू यू टीच, मैंने कहा आई, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, मैंने आंसर दिया इसका, एक सेकेंड ना। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब आपने कहा सर इंग्लिश कहाँ पर पढ़ाते हो, बताओ क्या कहोगे। वेयर, हाँ, कहाँ वेयर, पढ़ाती हूँ? बड़ा आसान है, मेरी बात समझना। वेयर टीच यू। नहीं, वापस बोलो। वेयर टीच यू। नहीं, वे कहाँ टीच पढ़ा? यू नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। अब समझो, अब मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उस पे आओ। अब समझो, मैंने आपको वेयर प्रैक्टिस टीच। सेट दिए हुए हैं, यस सर। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में आपको क्या दिखेगा, मैंने कहा वेयर, मैंने कहा आप कहाँ पढ़ाते हो। व्हाट डू यू टीच का मतलब हो गया आप क्या पढ़ाते हो। व्हाट को कर दो वेयर, WHERE, वेयर। सर वेयर डू यू टीच, इसका मतलब हो गया सर आप कहाँ पर पढ़ाते हो। करेक्ट, सर आप कहाँ पर पढ़ाते हो। आसान है, समझ में आ जाएगा, यस सर। इजी है। चलो जी, हाँ। अब एक काम करते हैं, अगर ये इतना ही इजी है ना, एक काम करते हैं आज इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं, ठीक है। मैंने यस सर। प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं आपको, उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी आदत हो जाए, वो चीजें आपकी प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए, ठीक है जी। चलो, ओके सर। अब ना मैं एक चीज और देता हूँ आपको एक बार के लिए। मैं ये सॉरी 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 सॉरी, क्या किया है मैंने, ओके मैंने ये विंडो बंद कर दी, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए प्लीज, है ना। ओके, दिख रहा है ना, सही है, यस सर, दिख रहा है। ठीक है। अब मैं ना आपकी स्क्रीन पर कुछ शेयर कर रहा हूँ, एक स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक फाइल दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन पर, यस सर। ठीक है। अभी पूरी दिखाई दे रही है क्या, हाँ। अच्छे से पूरी स्क्रीन पे आ रही है, हम्म। कुछ अक्षर कट तो नहीं रहे, मतलब नीचे वाले कट रहे हैं, बाकी सही दिख रहा है। नीचे वाले आप सही दिख रहे हैं, हाँ। ठीक है। चलिए, अब देखो ये प्रैक्टिस सेट है, जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बना के मैंने लाइव किया था। मैंने कहा था ये एक्चुअली कंटिन्यूअस का आ गया, हम लोग कंटिन्यूअस पे नहीं थे, हम लोग प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे थे, राइट। प्रेजेंट सिंपल प्रैक्टिस सेट 1 की बात कर रहे थे हम लोग। हम्म। ये सेट है प्रैक्टिस सिंपल टेस्ट, ये रहा आपका प्रेजेंट का, ओके। हम्म। दिखाई दे रहा है जी पूरी स्क्रीन पे अभी अच्छे से, यस सर। ठीक है। मैंने कहा आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। अब हम्म। मैंने आई स्पीक लिखा है तो आप इसको ना यू स्पीक इंग्लिश कर दो, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। फिर यू की जगह वी लगा दो, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, कैसा करना है। यस सर। यस सर। तो ये पूरा सेट आई वी यू और दे के साथ में, ये पूरी प्रैक्टिस आप आज करना। अब जैसे मेरे को कहना है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये जो आई लिखा है ना, आई को हम्म। पढ़ा रहने देंगे, स्पीक का मतलब होता है बोलता हूँ। अब हम्म। मैं बोलने का काम नहीं कर रहा, अब मैं खेलने का काम कर रहा हूँ, राइट। हाँ। तो मैं कहूंगा आई आई प्ले, प्ले स्पीक को क्रिकेट। कर दूंगा प्ले, और इंग्लिश को कर हम्म। दूंगा क्रिकेट। मैं इंग्लिश तो नहीं खेलता, हम्म। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ पर मैं इंग्लिश नहीं खेल सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हो यस सर। जाएगा आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। इसी तरह से आई डोंट प्ले क्रिकेट, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा, वाई डू आई प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। फिर ये क्या हो जाएगा, वी प्ले क्रिकेट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम क्रिकेट खेलते हैं। वेरी गुड। फिर इसका क्या हो जाएगा, वी डोंट प्ले क्रिकेट। वेरी हम गुड।
हम क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, फिर ये डू वी प्ले क्रिकेट? वेरी क्या गुड, हम क्रिकेट खेलते हैं? शाबाश, फिर ये वाई डू वी प्ले क्रिकेट? हम क्रिकेट हम, क्यों खेलते हैं, हाँ। राइट। अब आपको कहना है कि मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। अब सीखने के लिए वर्ड क्या आएगा, लर्न, LEARN, लर्न, है ना। हम्म तो आप क्या कहोगे, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। आई लर्न इंग्लिश। वेरी गुड। अब आई आई डोंट लर्न वेरी इंग्लिश। गुड। अब डू आई लर्न इंग्लिश? वेरी गुड। अब आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस सर। पहले से आसान हुआ या नहीं हुआ। हाँ। यही प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको यही प्रैक्टिस सेट दिए हैं। इनके पीछे बहुत मेहनत जाती है हल्का, जब ये बनाता हूँ ना टाइम बहुत जाता है। यस सर। इनका ना फायदा उठाओ, प्लीज प्लीज फायदा उठाओ, एक एक चीज का फायदा उठाना है, ठीक है। अब ओके एक सर। और चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, एक और चीज, सॉरी 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 सॉरी, वेयर इज इट, ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दिस फाइल वंस अगेन, ओके एक सेकेंड। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है अभी आपको, हाँ। ठीक है। अभी सेंटर में स्क्रीन बिल्कुल। यस सर। अब देखिए मैंने ऊपर क्लियरली मेंशन किया है, इफ योर सब्जेक्ट इज ही शी इट और एनी नेम, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है, देन यूज मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। हम्म फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है, एंड हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हो जाएगी डज, जहां पर डू नोट लगा रहे थे वहां पर डज नोट आ जाएगा, ओके। बट ये ओके आएगा सर। कहां पर, ओनली इन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस। अब हम्म एग्जाम्पल दे रखा है, ही स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, हम्म वो इंग्लिश बोलता है। अब आपको कहना है कि वो क्रिकेट खेलता है, तो बताओ क्या कहोगे। ही प्लेस क्रिकेट। वेरी गुड। अब बताओ क्या कहोगे, यहां पर इस लाइन में क्या कहोगे, ही डज नॉट वाली लाइन में क्या कहोगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहां पर क्या कहोगे, डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। फिर यहां पर क्या कहोगे, वाई वाई डज ही प्ले क्रिकेट? ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर में बिल्ली है ना, हम्म ही हम्म और शी तो बात करते हैं इंसानों के लिए, या आपके हम्म घर में अगर पालतू जानवर है तो उनको भी ही और शी कहते हैं, हम बुलाते हैं उनको ही और शी बोल के। लेकिन अगर कोई जानवर है जो पालतू नहीं है या कोई चीज है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इट। क्या यूज करेंगे, इट। इट। और ये बन जाएगा, जैसे मैंने कहा आपके घर में कोई बिल्ली है और वो बिल्ली को दूध पसंद है, राइट। तो ये हो जाएगा इट लाइक्स मिल्क, इसको दूध पसंद है, राइट। इट डज नॉट लाइक मिल्क, इसे दूध पसंद नहीं है, इस तरह से, ठीक है। मैंने यूजेस ऑफ इट भी लिखे हैं, यह हमेशा जानवरों या फिर विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। फिर है पायल स्पीक्स इंग्लिश, पायल अंग्रेजी बोलती है, ठीक है। ऐसे ही आपको कहना है मेरा भाई अंग्रेजी बोलता है, बताओ क्या कहोगे। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, वेरी गुड। तो ये प्रैक्टिस सेट से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू योर प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए हुए हैं मैंने, फायदा उठाइए जितना ज्यादा आप उठा सकते हैं, एज मच एज यू कैन। प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल दैट आई हैव अपलोडेड, ओके। ओके ओके सर। ठीक है, तो पर अब सर आपके आगे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मतलब जो मतलब आप बुलवाते हो ना तब पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते नहीं, हैं। नहीं होना, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। देखो मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी। ये कंफ्यूजन पता है क्यों होता है, आपको एजुकेशन इंस्टेंट की आंसर वजह से। देना होता है, इंस्टेंट आंसर देना होता है, इसलिए थोड़े कंफ्यूज रहते हैं।
गलती होती है, होने दो, 50 गलतियां हो जाएंगी, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, गलती तो हो रही है, सबसे होती है, समटाइम मुझसे हो जाती है। कोई यहाँ कोई है ना, वो अल्लाह अकबर बोल के कोई गर्दन काटने की सजा नहीं है कि इसने गलती कर दी, हल्का ले आओ आगे, चलो गर्दन काट दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं, गलतियां करो, लेकिन उन गलतियों से सीखो। ओके ठीक सर। है, चलो वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा अलका, ठीक है, 5 मिनट लास्ट आपसे बात करूं, फिर आगे नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ जाएंगे। लास्ट 5 मिनट आपके और हैं। अलका आपको कहना है, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट वर्ड दे रहा हूं मैं आपके लिए, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, हाँ प्लीज, मैं वर्ड रिपीट नहीं हो जाए थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है। ओके ओके सर। ठीक है, एक नया वर्ड सिखा रहा हूँ आपको, अप्लाई सिखा दिया था, अप्लाई हमने कर लिया था, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप्रूव करना, अप्रूव, अप्रूव समझते हैं आप? इम्प्रूव। अप्रूव, अप्रूव, APPROVE, अप्रूव, अप्रूव करना, यानी कि किसी चीज को अप्रूव कर दिया हमने, कोई प्रपोजल आया, हाँ हाँ। साइन किया, फाइल अप्रूव कर दी, हाँ ये काम करवा लो, हो जाएगा, अप्रूव कर दिया आपका काम, राइट? यस सर। अब आपको कहना है मैं अप्रूव करता हूं, आई अप्रूव। ठीक है, हम अप्रूव करते हैं, वी अप्रूव। हम अप्रूव नहीं करते, वी डोंट अप्रूव। ठीक है, तुम अप्रूव करते हो, यू अप्रूव। क्या तुम अप्रूव करते हो? डू यू अप्रूव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं अप्रूव कर रहा हूं, आई अप्रूविंग। आई अप्रूविंग या आई एम अप्रूविंग? आई एम अप्रूविंग। ठीक है, आई एम अप्रूविंग, ठीक है, मैं तुम्हारी फाइल अप्रूव कर रहा हूं, कर रहा हूँ। आई एम योर फाइल। नहीं, आई एम अप्रूविंग योर फाइल। वेरी गुड, आई एम अप्रूविंग योर फाइल, है ना? मैं तुम्हारी फाइल अप्रूव नहीं कर रहा, आई एम नॉट अप्रूविंग योर फाइल। आई एम नॉट अप्रूविंग योर फाइल, ठीक है, तुम मेरी फाइल अप्रूव कर रहे हो, यू यू आर अप्रूविंग माई फाइल। ठीक है, तुम मेरी फाइल अप्रूव नहीं कर रहे, यू आर नॉट अप्रूविंग माई फाइल। यू आर नॉट अप्रूविंग माई फाइल, वेरी गुड। क्या आप मेरी फाइल अप्रूव कर रहे हो? डू यू। नहीं, डू यू कहां से आ जाएगा, इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में डू का कोई काम ही नहीं, इज एम आर, तीन ही चीजें। हाँ। क्या आप मेरी फाइल अप्रूव कर रहे हो? आर आर यू हाँ अप्रूविंग हाँ, माई फाइल। वेरी गुड, आर यू अप्रूविंग माई फाइल? अगर फाइल नहीं है, लेटर है, एप्लीकेशन है, तो बताओ क्या कहोगे? आर यू अप्रूविंग माई लेटर या ठीक है, एप्लीकेशन। वेरी गुड। अब कहो मैंने अप्रूव कर दिया है, मैंने तुम्हारी फाइल को अप्रूव कर दिया है, आई हैव अप्रूव्ड योर फाइल। आई हैव अप्रूव्ड योर, फाइल। ठीक है, तुम्हारे पापा की फाइल को अप्रूव कर दिया, बताओ क्या कहोगे? योर योर क्या आपके किसने पापा की? की फाइल, आपके पापा की फाइल, योर योर फादर। वेरी गुड, योर फादर्स फाइल, शाबाश। मैंने तुम्हारे पापा की फाइल को अप्रूव नहीं किया, बताओ क्या कहोगे? आई हैव नॉट अप्रूव्ड योर फादर्स फाइल। सही है, यस ठीक है, सर। फिर आपको कहना है इसने, कोई लड़का है उसके लिए कह रहे हो, इसने तुम्हारी फाइल अप्रूव कर दी है, क्या बोला था सर आपने? उसने आपकी फाइल अप्रूव कर दी है, ही हैव अप्रूव्ड ही हैव अप्रूव्ड योर योर फाइल। फाइल। अब इस सेंटेंस को गौर से पढ़ो अलका, इसमें एक गलती दिखेगी आपको, खुद की गलती खुद से निकालो। ही हैज अप्रूव्ड योर फाइल। कहां पर गलती है बताओ, हैज में या हैव में? यहाँ गलती है ना, हाँ। खुद को पता चल गया खुद से खुद की गलती, यस। है ना? पहले दिन ये था क्या, वर यू एबल टू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट डे? क्या पहले दिन आप अप्रूव इस चीजों को देख पा रहे थे पहले दिन खुद से? नो सर। नहीं ना, तो अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, राइट?
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ गया है ना? ओके फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ही हैज अप्रूव्ड। अब आपको कहना है कोई ऑफिसर है, ऑफिसर है ना, ऑफिसर ने आपकी फाइल अप्रूव नहीं की है, बताओ क्या कहोगे? तो सर वो लड़का ही हुआ ना, तो ही लगाओ। हाँ, ही नहीं, ऑफिसर ने नहीं किया है, ऑफिसर को, आपको लड़का लड़की अच्छा। नहीं, आपको ऑफिसर ही बोलना है, तो आप कहेंगे द ऑफिसर, क्योंकि कोई एक खास ऑफिसर है, समझना, हाँ। द ऑफिसर। अब यहाँ हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? द ऑफिसर। हैज ही आएगा, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट? द ऑफिसर हैज नॉट अप्रूव्ड माई फाइल या योर फाइल, जो भी है वो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यस सर। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब मैं चाहूंगा अपूर्व, कुलदीप और पायल, आप लोगों से परमिशन लेना चाहता हूं, एक बार आपको वापस इसकी प्रैक्टिस करनी है या हम आगे बढ़ जाएं पास्ट टेंस की तरफ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। आगे बढ़ जाएं तो लिख दीजिए, आप मुझे लिख के बता दो ताकि मैं समझ पाऊं। यस लिख दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर लगता है नहीं आगे नहीं बढ़ना सर, अभी और प्रैक्टिस करनी है, तो नो लिख दीजिए, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको अगर नहीं लगता तो। ठीक है, विद दिस अलका आगे बढ़ जाए। यस सर। ठीक है, शाबाश। चलो एक सेंटेंस दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, ये आपका टेस्ट है, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, और पायल को ले रहा हूं लाइन पे। हेलो पायल, हेलो पायल, Hello, sir. हाउ आर यू पायल? I'm fine, sir. Thank you for asking. What about you? Same here, my dear, same here. I'm also good, I'm also fine, thank you for asking. Okay, अभी पायल मैं ना एक बार फिर आपको म्यूट कर रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस Okay, मैं sir. बोल के बता रहा हूँ, वो सेंटेंसेस आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है, ताकि ये आपका टेस्ट है, ये Yes, आपका sir. टेस्ट है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? अगर आप लोग इस टेस्ट Okay, में sir. क्वालिफाई करेंगे तो फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? Okay, sir. तो आपका पहला सेंटेंस है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि मैं भारत में 10 साल से रह रहा हूं, मैं भारत में 10 साल से रह रहा हूं। आपको चैट बॉक्स में लिखना है खुद से, and the sentence that I'm giving you, I am just going to write down on your, type down on your screen as well, ठीक है? write fast, very good, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, विद दिस थोड़ा सा प्रैक्टिस और करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कुलदीप आपको लाइन पे ले रहा हूं। हेलो कुलदीप, हेलो कुलदीप, हाउ आर यू? Yes, sir, I'm fine. And you? आई एम ऑल्सो गुड, सेम हियर माई डियर, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, सो कुलदीप, हम लोग ना स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी, बाकी स्टूडेंट्स को भी एक आइडिया आएगा कि कैसे हमें ये प्रैक्टिस करनी है। सो आपने ये लिखा है ना जो आई एम लिविंग, इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे आ रहा हूँ, ठीक है? ये गलत है, आई एम लिविंग नहीं होगा। देखिए, ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है इसको बोलते हैं परफेक्ट, और परफेक्ट का है ये कंटिन्यूअस, ठीक है? और टाइम जो है वो है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस सेंटेंस है ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल पहले मैंने भारत में रहना शुरू किया, है ना, और आज भी रहता आ रहा हूं, आज भी रह रहा हूं, यानी कि कोई काम पूरा नहीं हुआ, पास्ट में एक टाइम पे कोई काम चालू हुआ, शुरू हुआ, और आज भी वो काम चल रहा है, एज इट इज जारी है, तो वहां पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब फर्क क्या पड़ेगा? अगर अगर मुझे कहना होता कि मैं भारत में रह चुका हूं, थोड़ा सा रिलेट करूंगा, अगर मुझे कहना होता मैं भारत में रह चुका हूं, तो मैं लिखता आई हैव लिव्ड इन इंडिया, करेक्ट? लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं हैज और हैव तो लगा ही रहा हूं, हैज और हैव के साथ में लगाऊंगा बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगा दूंगा आईएनजी,
यानी कि ये होगा हैज बीन लिविंग। समझ में आ गया? इसी तरह से हो जाएगा हैव बीन लिविंग। कहां पर? इंडिया में, इन इंडिया। अब रह कौन रहा है? मैं रह रहा हूं, तो ये कर दो आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया। मैं इंडिया में रह रहा हूं। कब से रह रहे हो? फॉर 10 years। समझ में आ गया कुलदीप? Yes, sir. आपका आंसर वैसे सही था, गलत नहीं था, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने गलत लिखा था, तो ये मैंने ले लिया है, पूरा करवा दिया है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 years। Yes. अगर होगा आई, वी, यू, दे या और कोई प्लूरल होगा, प्लूरल कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यूज करेंगे ing। करेक्ट? जैसे प्लेइंग हो गया, मैंने लिखा प्लेइंग। इसी Right. तरह से सिंगिंग हो जाएगा, इसी तरह से ईटिंग हो जाएगा। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से बनते हैं। अब अच्छे से देख पा रहे हैं? क्लियरली दिखाई दे रहा है अभी? Yes, sir. ठीक है, ऐसे होगा। अब मान लीजिए आपको कहना है, एक बार मैं आपको नहीं ले रहा हूं कुलदीप, मैं अलका को लेना चाहूंगा, क्योंकि अलका और मोना ने गलतियां की हैं। मैं चाहूंगा अलका और मोना दोनों हैंड रेज कर दें। आप, आपका प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रैक्टिस सेट आज और कल में अपलोड हो जाएगा। सो उनकी भी प्रैक्टिस करना शुरू करें, खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं बुलवा नहीं पाऊंगा आपको, कोशिश करनी है आपको। हेलो अलका, मोना लेता हूं 2 मिनट। हेलो अलका। हेलो सर। यस, मान लीजिए मैंने कहा, सपोज मैंने कहा कि मैं भारत में 10 साल से रह रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 years। ठीक है? ओके सर। अगर रहने का टाइम पक्का नहीं पता आपको, 10 साल, निश्चित साल नहीं पता, निश्चित दिन नहीं पता, निश्चित महीना नहीं पता, तो लगाएंगे 4। अगर महीना पता है या साल पता है या कोई तारीख पता है तो लगाएंगे सिंस। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। अब आई हैव बीन हो जाएगा या होगा शी हैज बीन। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। अगर होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, तो हैज बीन हो जाएगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया ना, हैज लिव्ड, हैज रिटन, हैज लर्नड, उस तरह से यहां भी हैज बीन का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यस सर। चलो, अब मैं ना कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं सभी के लिए। आपका पहला सेंटेंस है, मैं सुबह से गाना गा रहा हूं। मैं सुबह से गाना गा रहा हूं। आई हैव बीन यस, सिंगिंग सिंगिंग। फॉर मॉर्निंग। सिंगिंग व्हाट? एक गाना ना, सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग ए सॉन्ग। अब फॉर मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग एक निश्चित समय है, सुबह का समय निश्चित समय, तो सिंस आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। है ना? सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे हो सकता है, सिंस लास्ट नाइट हो सकता है ना? सिंस लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है ना? सिंस 2010 हो सकता है, 2020 हो सकता है, सिंस दिसंबर 2022 हो सकता है। ओके? ओके सर। फोर तब आएगा जब साल पता है, दिन पता है कि 7 दिनों से गाना गा रहा हूं, तो 4 आ जाएगा। 4, आई हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 7 days। ठीक है? इसी तरह से 7 आवर्स, 7 घंटों से, 7 महीनों से, 7 मंथ्स। अब 7 महीने पता है, लेकिन 7 महीने में पक्का पता है क्या कौन से महीने से? नो सर। जब पक्का नहीं पता तो 4, अदरवाइज सिंस। करेक्ट? यस सर। ठीक है, चलिए अब आपको कहना है मैं 5 दिनों से अंग्रेजी बोल रही हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग। स्पीकिंग हाँ, इन स्पीकिंग और स्पीकिंग इंग्लिश सीधा ही आ जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश।
4 दिन से 5 दिन से 4 days 4 डेज या 5 डेज जो भी है वो लगाते हैं, राइट। अब इसी का Yes. नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, मैं 5 दिनों से अंग्रेजी नहीं बोल रही हूँ। I have been not speaking English for 5 days. वेरी गुड। अब आई हैव बीन नॉट नहीं होगा, ये होगा आई हैव नॉट बीन। ठीक है जी, अच्छा आई हैव नॉट बीन हो जाएगा, आगे का एज इट इज रहेगा। आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 डेज, राइट। ओके सर अब आपको कहना है आप 5 दिनों से यात्रा कर रहे हो। एक वर्ड है ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल, फिर होता है TRAVELLED, ट्रेवल्ड, और फिर होता है TRAVELLED, ट्रेवल्ड, ट्रेवल ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड। ओके, अब आपको कहना है आप 5 दिनों से यात्रा कर रहे हो, बताओ क्या कहोगे। I have been नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। तो सर मैं कर रही हूँ तभी तो आई। नहीं, आपको मेरे लिए बोलना है, मतलब आपको सेंटेंस ही बोलना है कि आप 5 दिनों से यात्रा कर रहे हो, आपको सेंटेंस ही बोलना है। अच्छा You have been traveling. यू हैव बीन ट्रेवलिंग, कहाँ कर रहे हैं सर, कहीं भी? कहीं भी 5 दिनों से, यू हैव बीन ट्रेवलिंग 5 दिनों से। 4-5 days. बिल्कुल सही है, ट्रेवलिंग फॉर 5 डेज। आप 5 दिनों से यात्रा नहीं कर रहे हो, बताओ क्या कहोगे। You have not been traveling for 5 days. यू हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग For 5 days. फॉर 5 डेज, यू हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 डेज। ठीक है, ये भी सही है, यू हैव नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर 5 डेज। ठीक है, अब आपको कहना है क्या आप 5 दिनों से यात्रा कर रहे हो। Have been. क्या आप Have. 5 दिनों से, हैव बीन कैसा जाएगा पहले, फिर से, क्या आप 5 दिनों से यात्रा कर रहे हो। हाँ तो सर क्या बोल रहे हो ना आप कि क्या हाँ, आप? हैव बीन नहीं आएगा हल्का, हैव यू बीन, हैव यू बीन। ठीक है, हैव यू बीन, शाबाश। अब आगे क्या कहोगे। Traveling for 5 days. हैव यू बीन ट्रैवलिंग फॉर फॉर 5 डेज, हैव यू बीन तो सर ट्रैवलिंग। इसमें ऐसा क्यों है, मतलब कभी तो एक साथ कर देते हैं इसको, कभी अलग कर देते हैं ठीक है, उसका कारण है, देखो मैंने कहा यू हैव बीन ट्रैवलिंग, आप यात्रा कर रहे हो फॉर 5 डेज, राइट। अब जब नोट लगेगा ना, तो नोट पता है कहाँ लगेगा, यू हैव नॉट बीन, यही आ जाएगा, नोट यही हो जाएगा हैव के तुरंत बाद। अब तक हमने नोट हैव नोट किया या नहीं किया, हाँ है ना, तो हैव के तुरंत बाद नोट अपनी जगह पे ही लग रहा है, यू हैव नहीं नोट। सर, जैसे ये क्या क्वेश्चन वाला हो तो इसमें हैव बीन को भी अलग कर दिया। हाँ हाँ, क्यों किया, मैं रीजन बताता हूँ। यू हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 डेज, मैं बताता हूँ इसका ना रीजन भी बताता हूँ, 1 मिनट। अब देखो, ये तो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है जी, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, हाँ ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और ये है आपका WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाँ यू हैव नॉट बीन, ये आ गया, हैव और बीन के बीच में यहाँ पर नोट लगा दिया मैंने, करेक्ट। यू हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 डेज, यहाँ नोट लगा दिया, तो ये बन गया यू हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 डेज। 4-5 days. ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो हैव ही थी ना, हैज हैव। हाँ पहले हमने क्या किया था, हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई स्पोकन इंग्लिश, हैव आई गॉन टू बीकानेर, राइट। ठीक है, आपने ये सुना है पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड, हाँ हैव यू गॉन मैड, पागल हो गए हो क्या। यू किसके बाद आ रहा है बताओ, हैव हैव के के बाद। बाद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ आप ये यू को बीन के बाद कैसा लगाने की सोच सकते हो, मुझे बताओ, समझ रहे हो आप। हाँ
पर आप सर इसमें हेल्पिंग वर्ब ये बीन नहीं है क्या? बीन पार्ट है उसका, बीन अच्छा उसका पार्ट है, लेकिन हैव के बाद ही यू लगेगा। अभी इसको रटवा दूंगा मैं, रटने की जरूरत नहीं है, ये इतनी प्रैक्टिस हम कर लेंगे कि आपकी जुबान पे आ जाएगी ये चीजें, ठीक है। ओके तो ये हो सर। जाएगा हैव यू बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 days, हैव यू बीन ट्रैवलिंग फॉर 5 days। ओके सर। क्लियर? यस ठीक सर। है, आगे बढ़ जाएं फिर। यस सर। ठीक है, विद दिस आगे बढ़ रहे हैं। यस अपूर, डू यू हैव एनी डाउट बेटा हियर? कोई डाउट है आपको? Yes, sir. हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है, बोलो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आगे पायल के साथ थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ी बात कुलदीप से करूंगा। और आज की क्लास को ना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया हमने आज की क्लास में। पास्ट अभी शुरू नहीं करूंगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम बचेगा नहीं, तो आज पास्ट शुरू नहीं करूंगा, कल पास्ट शुरू करेंगे हम लोग। ओके, ठीक है। सो मैं चाहूंगा पायल आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए अपना। पायल, आई वांट यू टू प्लीज रेज योर हैंड। यस, आर यू रेडी? Yes, sir, I am ready. ठीक है, एक वर्ड है बहस। बहस आपने सुना होगा, बहस। बहस के लिए वर्ड क्या आता है Yes, इंग्लिश? sir. Argument. आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जो है बेटा, ये एक नाउन है, समझना मेरी बात, है ना। Yes, sir. और आर्ग्यू जो वर्ड है ये है वर्ब, ठीक है। तो हमें वर्ब को ठीक है यूज सर। लेना है, आई प्लस एक्शन हम जो करेंगे वो वर्ब को यूज लेंगे हम। ओके, Okay, sir. ठीक है। कुलदीप 2 मिनट बेटा, करता हूं बात आपसे ना, 2 मिनट। ठीक है, तो मैंने लिखा आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब हो गया, ये वर्ब है यहाँ पर। आर्ग्यू का मतलब एक्चुअली होता है बहस करना। क्या मतलब होता है? बहस करना। ठीक है, अब आपको कहना है मैं मेरे दोस्त के साथ बहस करती हूँ, बताओ क्या कहोगे? I argue with my friends. आई आर्ग्यू, आई आर्ग्यू, सॉरी 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 With सॉरी my सॉरी 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 सॉरी, यहाँ एक गलती है, 1 मिनट। GUE होगा यहाँ पर, ये टाइपिंग एरर हुआ है मेरा। ARGUE हो जाएगा, स्पेलिंग एरर हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आई आर्ग्यू विद माई friends. फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ बहस करती हूँ, है ना। मैं मेरे Yes, दोस्तों sir. के साथ बहस नहीं करती, बताओ क्या कहोगे? I don't argue with my friends. आई डोंट आर्ग्यू विद माई फ्रेंड्स, मैं मेरे दोस्तों के साथ बहस नहीं करती हूँ। आई डोंट आर्ग्यू विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्या मैं मेरे दोस्तों के साथ बहस करती हूँ? Do I argue with my friends? डू आई आर्ग्यू विद माई फ्रेंड्स, राइट, ये हो जाएगा। वेरी गुड। मैं मेरे दोस्तों के साथ बहस कब करती हूँ? When do I argue with my friends? वेरी गुड, व्हेन डू आई आर्ग्यू विद माई फ्रेंड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। फ्रेंड्स, राइट। अभी आपको कहना है तुम बहस करते हो। You argue. तुम बहस नहीं करते। You don't argue. तुम्हारा भाई बहस करता है। Your brother argues. आर्ग्यूज, वेरी गुड। तुम्हारा भाई तो भोला है। Sir, बोले को क्या बोलते हैं? इनोसेंट। Kind. इनोसेंट, Innocent. Your brother is innocent. वो मासूम है, वो भोला है। योर ब्रदर इज इनोसेंट, राइट, इनोसेंट। ओके, तो आपका भाई भोला है, वो इनोसेंट है, ठीक है। अब आपको कहना है आपकी मम्मी आर्ग्यूमेंट करती है, आर्ग्यू करती है। Your mother argues. योर मदर आर्ग्यूज, आपकी मम्मी मुझसे बहस करती है। Your mother argues with me. ठीक है, तुम्हारी मम्मी मेरे पापा से बहस कर रही है। Your mother argues with my father. कर रही है, आई सेड। आपकी मम्मी, Your हाँ sorry. Your Yes. mother is arguing with my father. ठीक है। आपकी मम्मी, क्या आपकी मम्मी आर्ग्यू कर रही है मेरे पापा के साथ? Is your mother arguing my father? इज योर मदर आर्ग्यूइंग With my father. with my father? Is your mother arguing with my father, right? So this would be the correct answer, yes or no?
Yes, sir. बस लास्ट 10 मिनट से मैं कॉल बैक करता हूँ ना, सिर्फ लास्ट 10 मिनट। ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ एवरीथिंग वट एवर आई हैव टॉट यू? Yes, yes, sir. Okay, very good. Okay, fine. So, beta, I have an urgent meeting. So, I have to finish this session here only. We'll give you Okay, 10 sir. minutes, last 10 minutes we'll give you. Then we'll proceed with my meeting, okay? Okay, So, sir. and one more thing, Nikita, those who are from Nagore, I want to tell you that we are going to set up offline spoken English batches as well as, and नेक्स्ट मंथ ओनली हम लोग ऑफलाइन स्पोकन इंग्लिश के बैचेस भी शुरू कर देंगे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो नागौर में रहते हैं और वो ऑफलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो इंग्लिश आश्रम से सीख सकते हैं, ठीक है? ओके, फाइन। सो विद दिस मैं बढ़ना चाहूंगा आगे कुलदीप दादीज के साथ। शैल आई मूव पायल? Yes, sir. ठीक है। हेलो कुलदीप। Yes, sir. अब आपको कहना है मैं 2 साल से IAS की तैयारी कर रहा हूं। I have been preparing for IAS exam for 2 years. For 2 years, Yeah. very good. I have been Preparing for IAS exam for 2 years. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपको नया वर्ड देता हूं ना, ठीक है, और वर्ड देता हूं मैं आपको इसके अलावा। ये एक अच्छी आपने बोली, ठीक है, अच्छा वर्ड बता दिया आपने, ठीक है। अब आपको कहना है मैं मेरे पापा से बहस कर रहा हूं। I'm arguing with my father. ठीक है, मैं मेरे पापा से सुबह से बहस कर रहा हूं। I have been arguing with my father since morning. ठीक है, मैं जब से जन्म लिया है मैंने तब से बहस ही कर रहा हूं। I have been arguing from my birth बर्थ के लिए सिंस okay, since birth. क्योंकि वो डेट तय है, Yes, sir. राइट? तो सिंस बर्थ हो जाएगा, सिंस माय बर्थ। आई हैव बीन आर्ग्यूइंग सिंस माय बर्थ, है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको वर्ड दे रहा हूं अरेंज, ARRANGE। योर नेक्स्ट वर्ड इज अरेंज। Arrange. अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। ठीक है। अब आपको कहना है मैं मेरा कमरा व्यवस्थित करता हूं। किसी ने आपको पूछ लिया व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, आप संडे के दिन क्या करते हो, और आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरा कमरा व्यवस्थित करता हूं, या मैं मेरा घर, कमरा ही कह लो, चलो यार, मैं मेरा कमरा व्यवस्थित करता हूं। क्या I arrange my room. आई अरेंज माई रूम। क्या तुम तुम्हारा कमरा अरेंज करते हो? बताओ क्या कहोगे? Do you arrange your room? वेरी गुड। मैं मेरा रूम अरेंज नहीं करता, I don't arrange my room. मेरी बहन अरेंज करती है। My sister arranges her room. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं अपना कमरा अरेंज कर रहा हूँ। I'm arranging my room. ठीक है, अब ये अरेंज जो वर्ड है ना, अरेंज, ये कई अलग अलग चीजों में काम आता है। एक अरेंजमेंट भी होता है, अरेंज से बनता है अरेंजमेंट। फॉर Right, एग्जाम्पल sir. आपको लाइट का बिल भरना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पे योर लाइट्स बिल, ओके, एंड यू डोंट हैव दैट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पे योर लाइट बिल, ओके, लाइट का बिल भरना है आपको, बट यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं है आपके पास, सो यू आर थिंकिंग अबाउट अरेंजिंग मनी, पैसों की व्यवस्था करने के बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट अरेंजिंग मनी, पैसा अरेंज करने के बारे में, ओके। अब आपको कहना है मैं पैसों की व्यवस्था कर रहा हूं, बताओ क्या कहोगे? I'm arranging money. ठीक है, मैं 2 दिनों से पैसों की व्यवस्था कर रहा हूं। I have been arranging money for 2 days. ठीक है, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले, But I didn't get money. नहीं मिले हैं, बट आई I हैव have नॉट gotten money. हाँ, आई हैव नॉट गॉटन मनी। ठीक है, वेरी गुड। अब ना गेट गॉट भी होता है, गेट गॉट भी होता है, आई हैव नॉट गॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. सो नेक्स्ट वर्ड दे रहा हूं अरेंज, मैंने बता दिया। अरेंज के साथ एक और वर्ड बता रहा हूं नेक्स्ट, और ये वर्ड है आपका अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, ARREST, अरेस्ट, है ना? अरेस्ट का Yes. मतलब होता है गिरफ्तार करना, करना। ठीक है।
अब अरेस्ट को छोड़ दो एक बार, ये सिर्फ मैंने वर्ड मीनिंग बताया आपको, क्योंकि आपकी जनरल बोलने की भाषा में आप कभी किसी को गिरफ्तार करोगे नहीं, राइट? Right, sir. तो ये आपकी बोलचाल की भाषा का पार्ट नहीं है। हम मेहनत वहीं करेंगे जहां हमें रिक्वायर्ड होगा, जहां हमें जरूरत होगी, वहीं दिमाग लगाएंगे। ओके, आस्क ये काम का है, ASK आस्क, ASK आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है? Yes, sir. मैं तुम्हारे घर का पता पूछता हूँ, I'm asking your नहीं आस्क your home. मैं पूछ रहा हूं नहीं बोला, मैंने कहा मैं पूछता हूँ। I ask your home's address. I ask your home's address, your home's address, या your address कह दो। Okay. I ask your address, मैं तुम्हारा पता पूछता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा पता नहीं पूछता हूँ। I don't ask your address. वेरी गुड। क्या मैं तुम्हारा पता पूछता हूँ? Do I ask your address? डू आई आस्क योर एड्रेस? मोना वेरी गुड, बहुत सही कर रही हो, वेरी गुड, शाबाश। ओके, डू आई आस्क योर एड्रेस, ठीक है। फिर आपको कहना है मैं एड्रेस पूछ चुका हूं, I have asked your address, लेकिन मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं मिला है। but I haven't got your address. बट आई हैवंट गॉट योर एड्रेस, या मुझे तुम्हारा घर नहीं मिला है। अब बताओ क्या कहोगे? I haven't got your home. नहीं, यहां थोड़ा सा फर्क है, समझना। गॉट का मतलब होता है मिलना, और फाउंड का मतलब भी होता है मिलना। Yes, sir. गॉट का Right. मतलब होता है इस वे में मिलना, Right. फाउंड का मतलब होता है इस वे में फाइंड करना, ढूंढना, कोई चीज को ढूंढना। Yes, sir. आई आस्क्ड फॉर योर एड्रेस, मैंने तुम्हारे घर के पते के लिए पूछा, बट आई हैव नॉट गॉट योर होम, मुझे घर नहीं मिला, गॉट नहीं आएगा, है ना? गॉट आप तब लगाएंगे जब आपको घर परमानेंटली आपको मिल गया, Yes, sir. रहने के लिए आपको ही मिल गया। गॉट, आप घर को ढूंढ रहे हैं, है ना, तलाश कर रहे हैं। आई हैव नॉट फाउंड, I have not found. ओके, ठीक है। Okay, sir. विद दिस निकिता से 2 मिनट बात करूंगा। हर्षिता सॉरी, आज मैं आपसे बात नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस। हेलो निकिता, हेलो निकिता। या निकिता, आपको एक सेंटेंस आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, उस पे एक सेंटेंस बनाना है आपको। आपका एक वर्ड है बैलेंस, BALNCE, बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित करना। जब आप किन्हीं चीजों को संतुलित करते हैं या संतुलन बनाते हैं किन्हीं चीजों के बीच में, तो बैलेंस उसको कहा जाता है, राइट? और हम कहते हैं आई बैलेंस। क्या कहते हैं? आई बैलेंस। आई बैलेंस, राइट? मैं मेरी लाइफ को संतुलित करता हूँ। आई बैलेंस माई लाइफ, राइट? आई डोंट बैलेंस माई लाइफ, ठीक है? अब आपको कहना है मैं मेरी लाइफ को संतुलित कर रही हूँ। बताओ क्या कहोगे? आई एम बैलेंसिंग माई लाइफ। ठीक है, शाबाश। मैंने संतुलित कर लिया है लाइफ को। आई हैव बैलेंस्ड माई लाइफ। ठीक है, मैं 1 साल से लाइफ को संतुलित करने की कोशिश कर रही हूँ। आई हैव बीन बैलेंसिंग माई लाइफ फॉर 1 year। नहीं, आई हैव बीन बैलेंसिंग तो तब आएगा जब बैलेंस कर रही हूँ। मैंने तो कहा कि मैं कोशिश कर रही हूँ। आई हैव बीन ट्राई टू बैलेंसिंग माई लाइफ फॉर 1 year। अब यहाँ समझना, यहाँ होगा आई हैव बीन ट्राइंग टू बैलेंस, ट्राइंग टू बैलेंस, राइट? आई हैव बीन ट्राइंग टू बैलेंस माई लाइफ, ओके। अब आपको कहना है मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश 1 साल से कर रही हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 1 year। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 1 year, ठीक है। मैं 15 मई से अब ये MAY को मई नहीं बोलना है, मई नहीं, कोई मई वई नहीं होता है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में होता है मे। क्या होता है? मे, ओके। तो आप कहेंगे मैं 15 मई, जिसको इंग्लिश में मे बोलना है आपको, से अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। I have been trying to speak English since 15 May। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोना आपने लिखा है आई हैव बीन ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर 1 month। वेरी गुड मोना व्यास, शाबाश, बहुत बढ़िया लिखा है। इंग्लिश की स्पेलिंग बस करेक्ट कर लीजिए, बाकी सब सही है।
Everything is good. Very good. So, Nikita, is there any problem, beta, that you are facing in this live session? Is there any problem that you are facing? No, sir, I'm not facing any problem. Okay, fine. So, may I ask you some more questions? Yes, sir. Are you ready for that? Yes, sir, I'm ready. Okay, just a minute. मैंने कहा, where do you live? I live in Barangaon. I live in Barangaon at Nagore. I live at Barangaon in Nagore. At Barangaon in Nagore. ये होगा. छोटी जगह के पहले हमेशा at लगाते हैं और बड़ी जगह के पहले लगाते हैं in. Okay. For example, I live at Housing Board in Nagore. I live at Housing Board in Nagore. Correct? Okay, sir. समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब आपको मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ. डू यू लर्न इंग्लिश? Yes, I learn English. ओके. निकिता, टेल मी फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? I am learning English at English Ashram. वेरी गुड. ओके. एंड हु सजेस्टेड यू फॉर इंग्लिश आश्रम? My school teacher suggested me to English Ashram. Okay, to learn from English ashram, right? Okay. How long have you been learning from English ashram? I have been learning for English Ashram for 17 days. For 17 days. Very good. So what do you think? Have you really learned how to speak English? Yes, I improved myself. Very good. So you have improved yourself. Yes, sir. Very good. So can you please tell me now, are you able to speak English? Yes, I am trying to speak English. Very good. Trying is a very good thing. If you are trying to speak English, then you will definitely speak English better. No one can stop you from speaking English. Okay. So my next question is, where do you study, beta? I study in St. Xavier's Hindi medium school, St. Xavier's Nagore. Hindi School. And after having your own classes in Hindi medium only, now after learning from English ashram, do you really feel that you will be able to speak English fluently just like me? Do you feel that? Yes, sir, I feel. Very good. बहुत बढ़िया. With this, I would like to have some word with other students as well. Thank you so much, Nikita from Nagore, for joining us today. With this, I am moving to our another student, Alka Pari. Alka, please raise your hand so that I can talk to you. Apur will come to you afterwards, my dear. Will come to you afterwards. मैं बात करूंगा आपसे ना. Don't worry. Don't type in your chat box. Write. Instead of typing, I want you to speak with me. Yes, Alka, are you from Dubai? Yes, sir. Okay, so currently you are living in Dubai or you went to Dubai? I living in Dubai. You are living in Dubai. Okay, fine. ठीक है, Alka. Thank you so much. With this, I would like to ask some more questions with Kuldeep. Kuldeep, please raise your hand, beta. Anyone else who wants to talk to me can raise his or her hand. After that, we'll conclude this session here only. Okay. So please raise your hand if you want to talk to me or. Okay. Hello. Yes, Apur. Hello, sir. I am Purva. Yeah. Hi, Purva. How are you, ta? I am fine, sir. Thank you for asking. And what about you, sir? I'm good, beta. I'm good. I'm also fine. Thank you for asking. And where are you right now, Purva? Are you in Jodhpur or you have gone to Gharsana? Sir, I am in Jodhpur. So you are in Jodhpur. Okay, fine. So what is your experience of these 17 days? Do you really feel that your brother and you will be able to speak English? Do you feel that? Yes, sir. I really feel that I and my brother will definitely speak English one day. Very good, very good. Even your brother has started speaking English, right? He has started. Has he improved his English?
Yes, Okay, sir, he has improved his English. very good. Do you feel any difficulty while online classes in your learning? While learning, do you No, feel any problem? no, sir, I don't feel any problem instead of network issue Yeah, that is of another. mine only. Yes, yes, yes. That is another part. If you are living in an area where there is no proper network connectivity, then you might face some issues, right? Rather than that, there is no issue with this. Okay, your study will be as usual as we are having your classes, and the same way will continue. So, with this, thank you so much, everyone, for joining us. Thank you so much for choosing English Ashram as your spoken English learning partner. Thank you so much. Bye bye. Good night.